welcome back to my channel. Today I'm going to make a new kind of a video and which is very necessary essential for upcoming teachers as there is a number of job vacancies for teacher and recruitment available. Now for the coming teacher recruitment, this is a very useful interview video. Okay, what are the common teacher interview questions and how to tackle it? And for those people are teaching English subject especially or in English medium, so most of the time interview taken in English language, and if your learning method or the mode is Marathi or your any language which is your mother tongue, and those such kind of the candidate hesitate how to speak in English. For such a candidates, some common questions and answer I prepare for you people. So let's get started. How to give interview questions answer. Okay, so here are on screen some are questions I prepared and formal answers also. It is a sample of answers. So let's start with the first question. First question is, and before going to start questions, I would like to mention some tips for you people that where when you are going to uh, give interview, there should be your dressing sense. Your dressing sense or code should be a formal. If you are wearing the formal dress, which is impactful, then while talking with the interviewer, you should make a eye contact with the interviewer, and while speaking with you, they should feel that you are a very confident guy. एज वेल एज आपको ये जताना है कि आप कॉन्फिडेंट है, और अगर कोई आपको आंसर नहीं आता है तो आपको सीधा ना नहीं कहना है, पर कोई गलत आंसर भी आपको नहीं देना है. अगर आपको नहीं आता है देन फ्रैंकली यू से दैट दैट टाइम आई डोंट रिमेंबर, आई नो इट बट आई कांट रिकॉल. मतलब मुझे पता है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सच लाइक दैट. बट डोंट गिव द रॉन्ग आंसर बिकॉज it will be the wrong impression on the interview. So let's start our today's video on interview questions and the sample answers. Now my first question is, why do you decide to become a teacher? Why did you decide to become a teacher? This is a question with the complexity as much as tell us something about yourself. Sometimes there is a common question, introduce yourself. Introduce yourself ये बहुत ही common question होता है, and how to give answer it. So while introducing yourself, you should introduce yourself with your name, where are you from, belong to which city, then start telling your education, your achievements, your hobbies. Okay, now let's start with our question. Why do you decide to become a teacher? आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? सो दिस इज अ क्वेश्चन विद द कॉम्प्लेक्सिटी एज मच एज अ टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ. नो, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ सच अ क्वेश्चन? तो हमारा आंसर होना चाहिए, आई डिसाइडेड टू बिकेम अ टीचर ड्यू टू सेवरल रीजन्स. फर्स्टली आई हैव नॉक for learning new things, and when you teach you often get more lessons than you give. मतलब ये वो कहना चाहते हैं हम कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, उसके बहुत सारे कारण हैं. पहला तो ये कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता हूँ, और जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम खुद बहुत लेसन सीख जाते हैं. सेकेंडली आई लाइक बीइंग अराउंड यंग माइंड्स. जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे अराउंडिंग हमेशा यंग चिल्ड्रन रहते हैं, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है. देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेटिव पावर आर incomparable, which also explain the former. Furthermore, I want to impart knowledge and guidance however I have, and I can young minds have the most gain. And teaching is just not a profession, it is a passion of me, and I like to impart my knowledge among the young kids and motivate them, and I will try to help them to achieve their goal. This is how you should give the answer. Now the second question, what is your teaching philosophy? Okay, to seek your approach, आपका टीचिंग मेथड जानने के लिए आप किस तरह से टीचिंग करेंगे, आपके प्राइमरी गोल वगैरह, तो आपका आंसर जो है कुछ इस प्रकार होना चाहिए. माई फिलोसॉफी एज अ टीचर इज़ टू गिव नॉलेज विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच. My philosophy as a teacher is to give knowledge with a practical approach. If the children understand what is the use and significance of what they are learning, they will retain it better. मतलब मेरी फिलोसॉफी टीचिंग की ये है कि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच उन्हें देना चाहता हूँ
एक बार चिल्ड्रन समझ जाते, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारे इस एजुकेशन का लाइफ में क्या यूज़ है, देन व्हाट दे आर लर्निंग, इसके क्या मायने हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते. एज आई प्रेफर टू एंगेज स्टूडेंट विद द लेसन इंस्टेड ऑफ वन एंडेड फ्लो ऑफ लेसन्स विच हैव इज एडवांटेज इन मेनी causes. Okay, so using multimedia is also preferred by the sense. Now the third question, what type of a classroom management structure would you implement if you are hired? अगर हम आपको हायर करते हैं तो किस तरह का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आप इम्प्लीमेंट करेंगे? ओके, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आपका मैनेजमेंट स्किल वो जानना चाहते हैं, तो आपका मैनेजमेंट स्किल कैसा होना चाहिए, उसका आंसर आप कुछ ऐसे देंगे. माई क्लासरूम मैनेजमेंट एम्स प्राइमरली एट डिसिप्लिन and an engaging environment which the exact approach may differ for every case. My classroom management जो है वो primarily disciplined and engaged environment रहेगा, while the exact approach may differ for every case. अलग केस में हर दिन थोड़ा सा उसमें बदलाव हो सकता है, but the basic approach is shuffle seating arrangement, teach with active discussion, impart responsibilities among the students, counsel the students from time to time. In one of the classes I overlooked, we had daily art and craft competition also. Okay, now the next question, how have you used or how will you use technology in the classroom? Now it is a information technology era, ICT era. Then there should be a question like this कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे. सो टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडर इन द क्लासरूम. आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडर इन द classroom. I remember when I taught young children about different animals and use a smartphone with the smart board monitor to show them. So the student totally engage with the like YouTube वगैरह यूज़ करके हम बड़े से टीवी पे स्क्रीन पे दिखा रहे और दिखाते दिखाते एक्सप्लेन कर रहे. ओके, तो ऑडियो वीडियो विजुअल इफेक्ट बच्चों पे बहुत अच्छा रहेगा, बट इसे कभी कभार यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा एडिक्टेड ना हो जाए. Now the next question, what approach or the strategy would you use to learn new information? Okay, so our answer should be like this. Most of my information come from the reading books and articles. However, most of the explain thing in brief passing, and thus I keep the internet open. Internet sources may not be fully reliable. Okay, now the sixth question, what continuing education classes, workshop, training have you attended? सो सीक एनी काइंड ऑफ अ फॉर्मल लर्निंग, आप जो आपने किया होगा, पढ़ा होगा, उस बारे में आप कुछ भी जो है वो बता सकते हैं. ओके, नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन लीडिंग एनी आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़? स्कूल ख़त्म होने के बाद किसी और एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, लीड करना चाहिए? देखो, हमेशा इस सवाल का जो आंसर है वो पॉजिटिव देना है. आपको कहना है सर्टनली, श्योर, मैं हमेशा से करना चाहूँगा. आई हैव बीन गिविंग स्विमिंग लेसन्स इन प्रीवियस क्लासेस. दोज पीपल आर नॉट क्विक लर्नर, वो एवरेज बच्चे हैं, उनको मैं अलग से कुछ टाइम देके पढ़ाना चाहूँगा. स्पेशली हेल्प सेवरल स्टूडेंट टू गेट गो ऑफ फियर एंड लर्न टू डाइव. स्विमिंग पढ़ाना सिखाना चाहूँगा, डाइविंग उसमें कैसे करना है वो सिखाऊंगा. आई वुड लव टू कोच देम इन हैंड क्राफ्टिंग, ओरिगामी, जो मुझे आता है और जो वर्सटाइल भी है, जिसके बच्चों का बहुत वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा मैं उनको ज़रूर पढ़ाऊँगा. देन क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू डील विद अ स्टूडेंट हु इज़ हैबिचुअल लेट? कोई बच्चा हमेशा ही लेट आता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? नाउ द आंसर शुड बी लाइक दिस. माई फर्स्ट अप्रोच विल बी टू काउंसिल द स्टूडेंट. पहले मैं उस बच्चे से बात करूँगा एंड फाइंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, और उस रीज़न का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या उसका रूट कॉज क्या है वो ढूंढने की कोशिश करूँगा. वेदर इट इज़ फ्रॉम होम, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, या उसे घर से कोई प्रॉब्लम है, या उसे कोई ट्रांसपोर्ट से प्रॉब्लम है, मे बी ड्यू टू द साइकोलॉजिकल कॉजेज लाइक द फैमिली बैकग्राउंड, लाइक डिस्लाइक और समथिंग, या साइकोलॉजिकली वो स्कूल नहीं आना चाहता है, ज़बरदस्ती आता है. सो आई वुड लाइक टू आइडेंटिफाइड सच अ केस, एंड देन आफ्टर आई काउंसलिंग विद द स्टूडेंट, पेरेंट एंड माई स्कूल्स हायर अथॉरिटी. ओके, इस तरह का हमारा जवाब वहाँ पे होना चाहिए. नाउ, हाउ डू यू एंगेज अ रेलिक्टेंट स्टूडेंट? आप रेलिक्टेंट स्टूडेंट से कैसे एंगेज करेंगे? जैसे अनदर वेरिएशन ऑफ द अबव इन कैन बी आंसर सिमिलर पैटर्न. मतलब जो कभी ध्यान नहीं देता है, बहुत विम्सिकल बच्चा है, उसे एक तरफ आप नहीं बिठा सकते, या रेलिक्टेंट बच्चा है, तो आप उसे कैसे करें, हैंडल करेंगे? सो द प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकती है. सो सच काइंड ऑफ द गाइज एंगेजमेंट और मे बी सिंपल इंट्रोवर्टिज्म उसे अप्लाई करना चाहिए. इस तरह से हमारा उसका जवाब होना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड यू से टू एन एंग्री पेरेंट अबाउट देयर चाइल्ड्स ग्रेड? जो बच्चे हैं ना, कम मार्क्स आने पे बच्चे पे चिल्लाते हैं, उन्हें कोसते हैं, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे? इफ़ एनी पेरेंट इज़ एंग्री अबाउट देयर चाइल्ड्स ग्रेड,
इट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल टू लिसन देम पेशेंटली एंटिल दे कूल ऑफ। जब तक वो शांत नहीं हो जाए, देखिए कोई बच्चे के पेरेंट्स आपके पास आए, बोले कि हमारे बच्चे के इतने कम मार्क्स आए और वो आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आप पहले तो वो उनकी बात शांति से आप पहले सुन ले, उन्हें कूल डाउन होने दें। देन आई वुड एंगेज देम एंड द स्टूडेंट इन प्रोडक्टिव डिस्कशन टू आइडेंटिफाई द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑफन देम पेरेंट्स और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चाइल्ड। एंड उन्हें मैं ये भी समझाऊंगी कि बियॉन्ड द स्टडी, इफ़ योर किड इज़ वेरी गुड इन अदर एक्टिविटीज़, देन लेट देम डू, अलाउ देम। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, what would you do if you were suspect neglect or abuse in the home of one of your student? आपको कहीं से पता चलता है कि आपके बच्चों को घर पे मारपीट होती है, अब्यूज़ होता है या निग्लेक्शन होता है, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? इन सच ए सिनारियो द बेस्ट अप्रोच इज टू इन्वॉल्व द स्कूल अथॉरिटी। आप स्कूल अथॉरिटी को पहले ये बात बताएं। दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज द ब्लेम प्रॉब्लम इज सीमिंगली ऑन द पेरेंट ऑल्सो। ओके, नाउ विच कैन बी मिसअंडरस्टूड बाय द मेनी। So what would be if you suspect neglect or abuse in the home of one of your student? How do you evaluate students? Students का evaluation आप कैसे करेंगे? Each individual has a unique set of strength and area for improvement. Thus, the comprehensive and inclusive approach to teaching help me identify their best on it. So I like to evaluate student how much they can and have improved them in given time. पहले तो उन्हें मैं टास्क वगैरह देके ये पता लगाऊंगी कि वो खुद को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, उनका इवेल्युएशन करूँगी। आई ऑल्सो लाइक टू कीप माई सेल्फ इन पिक्चर, मैं भी खुद उनके साथ इन्वॉल्व रहूँगी। ओके, नाउ वाई डू यू वॉन्ट टू टीच एट दिस स्कूल? आप इस स्कूल को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? ओके, द क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सीक दैट अंडरस्टैंडेबल आंसर। तो आपका आंसर होना चाहिए योर नॉलेज एंड स्टूडेंट रिक्वायरमेंट इट्स टू गुड एंड इट्स मीट माई resume and CV. It is good practice to prioritize the exact position you have applied for ad. Okay, then what can you bring to your school that make you unique? आप स्कूल के लिए ऐसा क्या करेंगे जो आपके स्कूल से यूनिक लगे, स्कूल को यूनिक लगे? ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस टू डेट आई हैव लर्न दैट आई हैव बीन ट्रेन इन अ लॉट ऑफ इसेंशियल स्किल दैट आई कैन गिव टू द स्टूडेंट्स एज वेल। तो जो भी नॉलेज या स्किल मेरे पास है मैं स्टूडेंट में बांटना चाहूँगी। Also part of my job, I can guide and lead activities like academic trip, adventure sport, several outdoor activities since I have been involved in them and also know several experts in different subjects. This is how the 14th question and the answer should be like this. अगर आप किसी भी लैंग्वेज टीचर है, लैंग्वेज इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपकमिंग जो टीचिंग रिक्रूटमेंट है महाराष्ट्र में उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इसे ध्यान से सुने। इट विल बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन बी फ्रैंकली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।